Hello dear students, today we will study the normal and tangential component of curvilinear motion. Normal and tangential components of curvilinear motion. Okay, so what is normal and tangential component? In curvilinear motion, particle moves along a curved path. Okay, so here is the particle. So the velocity of this particle is always tangential to the path. Okay, velocity of this particle is always tangential to the path. So this is vt, tangential velocity, and the direction which is perpendicular to the tangential acceleration is always नॉर्मल डायरेक्शन. ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहती है उसको हम नॉर्मल डायरेक्शन कहेंगे. सो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन कर्विलिनियर मोशन, ओके, ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, देन देयर विल बी acceleration in tangential direction and acceleration in normal direction, at and an. So what is at? At is dvt by dt. Vn is 0, there is no velocity in normal direction, but an is equal to v square by rho. An is equal to v square by rho. We have to remember this. Okay, we will take one numerical on this. A particle moves in a circular path of radius 0.4 meter. Okay, radius is given, radius of curvature is given 0.4 meter. Calculate magnitude of acceleration a of the particle if its speed is 0.6 meter per second. V is equal to 0.6 meter per second. But it is increasing at the rate of 1.2 meter per second each second. Means what? This velocity is increasing at the rate of 1.2 meter per second each second. Means what? It is meter per second square, so it will be acceleration. So it is the acceleration. So this acceleration is 80. ठीक है, न्यूमेरिकल में जो कोई एक्सलरेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो एक तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन रहेगा, वो मेंशन करेंगे. ठीक है, कि इट इज़ टेंजेंशियल एक्सलरेशन और इट इज़ टोटल एक्सलरेशन. इफ इट इज़ नॉट मेंशन, देन यू हैव टू कंसिडर इट इज़ द टेंजेंशियल एक्सलरेशन. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ए. हमको टोटल ए फाइंड करना है. सो दिस ए इज इक्वल टू in under root at square plus an square. At square plus an square. So first of all we will find an. An is equal to v square by rho. V is 0.6 square, rho is 0.4. We will find this. It is 0.9 meter per second square. It is given 1.2 meter per second square. So a is equal to, in under root, at is 1.2 square plus an is 0.9 square. It is 1.5 meter per second square. It is 1.5 meter per second square. Acceleration is 1.5 meter per second square. विल टेक अनदर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको, जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम का, वो बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार आपको उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, एंड यू विल बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एट द इंस्टेंट t is equal to 0, locomotive starts to move with the uniform accelerated speed. Means what? U is equal to 0. Speed along a circular curve of radius rho is given 300, sorry, it is 600 meter, and acquires by the end of first 60 seconds.
of motion, a speed equal to 24 kmph, means at t is equal to 60 seconds, v is equal to 24 kmph, means what, 24 into 5 by 18, which is equal to 6.67 meter per second. Okay, find the tangential and normal acceleration at the instant t is equal to 60 seconds. Okay, an and at फाइंड करना है at t is equal to 30 सेकेंड. ठीक है, at t is equal to 30 सेकेंड. तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सलरेशन फाइंड करेंगे विच विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, सो उसके लिए 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वो हमको यूज़ करना है. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी टी. ठीक है, जब अब हमको यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ये वेलोसिटी 6.67 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस 80. अब कौन से टाइम पे वो आ रहा है, 60 सेकेंड्स पे था. ठीक है, सो 80 इज इक्वल टू 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 6.67 डिवाइडेड बाय 60, इट इज़ 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी हमने 80 फाइंड कर लिया. ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, 30 सेकंड्स पे हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है. ठीक है, 30 सेकंड्स पे वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये 60 सेकंड्स पे दी हुई है. तो हम सबसे पहले अभी 30 सेकंड्स वाली वेलोसिटी फाइंड करेंगे. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी टी. राइट, सो यहाँ पे v u 0 है, 80 0.11, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है, 0 मतलब क्या, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक एक्सलरेशन कांस्टेंट रहेगा. सो t इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे 30. सो इट विल बी 3.33 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ हमको क्या पूछा है, an और at पूछा है. ठीक है, अभी हम an फाइंड करेंगे. an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रो. 30 सेकेंड्स पे पूछा है, तो 30 सेकेंड्स पे वेलोसिटी हमको ये मिली है. सो इट इज़ 3.3 स्क्वायर, रो इज 600. सो an इज इक्वल टू an is 0.018 meter per second square. Okay, is that simple? Now we will take another problem. Okay, here is the another problem. This problem was asked in December 19 for 6 marks. A train enters a curved horizontal track with the speed of 105 kmph. Okay, and slows down to 45 kmph in 10 seconds. Okay, in 10 सेकेंड. ठीक है, 0 सेकेंड मतलब जब t इज इक्वल टू 0 था तब उसकी स्पीड इतनी थी, जब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है तो उसकी स्पीड 45 kmph है. ठीक है, एन एक्सेलरोमीटर माउंटेड इनसाइड द ट्रेन रिकॉर्ड्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो हियर a is given 3 meter per second square. Now this is normal acceleration or tangential acceleration or total acceleration. ठीक है, देखो नॉर्मल एक्सलरेशन तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये नॉर्मल एक्सलरेशन नहीं हो सकता. ठीक है, अभी कांस्टेंट एक्सलरेशन यानी 80 इज़ कांस्टेंट एक्सलरेशन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 80 जो है हमको उसको फाइंड करना पड़ेगा जब वेलोसिटी इतनी है. तो यहाँ तक आने के लिए वेलोसिटी एक्सलरेशन जो है वो डिक्रीज हुआ होगा, तो वो एक्सलरेशन हमको पहले फाइंड करना है. ठीक है, सो दैट विल बी 80. नाउ दिस इज द टोटल एक्सलरेशन. ओके, व्हेन द ट्रेन इज इन 6 सेकेंड. ओके, सो टोटल एक्सलरेशन इज when the train is 6 seconds. Calculate the radius of curvature of the track at that instant. ठीक है,
इस टाइम पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है रो, ठीक है। तो ये टाइम पे मतलब टी सेकंड के लिए हमको पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए थ्रू आउट द जर्नी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हर एक पॉइंट पे वही एक्सेलरेशन रहेगा, वो एक्सेलरेशन हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल फाइंड दैट एक्सेलरेशन। सो हियर u इज इक्वल टू 105 kmph, इसका कन्वर्जन हम करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, इट इज़ 29.17 meter per second. U, okay, then velocity is 45 kmph. 45 kmph. So it will be 12.5 meter per second at t is equal to 10 सेकेंड, ठीक है। हम इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू 12.5, u इज 29.17 प्लस ए टी इंटू टी इज 10। okay, so from this we will find the value of 80. So 80 will become, calculate the 80, it is minus 1.667 meter per second square. Okay. Now when train is 6 second into the curve its velocity will be, ठीक है। अभी we will ये हम यहाँ पे velocity फाइंड करेंगे। तो कौन सी velocity हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं? ओके, ये टाइम की वेलोसिटी, ठीक है, ये टाइम की वेलोसिटी। सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी सिर्फ कंसिडर कीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v कितना आएगा? v हमको कैलकुलेट करना है। u इज़, ये u हमको लेना है विच इज़ 29.17। अभी 80 तो कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। 1.667 इंटू टी इज़ 6। ओके, सो v इज इक्वल टू 19.16 मीटर पर सेकेंड, 19.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एट, अभी ये वेलोसिटी, तो हमको क्या फाइंड करना है? जब t इज इक्वल, ये वेलोसिटी हमने फाइंड की है ये इंस्टेंट पे, b इंस्टेंट पे, और b इंस्टेंट यानी क्या? t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब क्या? 6 सेकेंड पे जब पार्टिकल b पॉइंट पे था तब उसको उस टाइम पे हमको रो फाइंड करना है, ठीक है। तो रो हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो, ठीक है। अभी an हमको पता नहीं तो रो कहाँ से फाइंड करेंगे? v पता है, ये v आया है हमारा t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, तो यही v हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम an फाइंड करेंगे। सो व्हाट विल बी an? a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में था तो हमने इस दोनों साइड से स्क्वायर कर लिया। अभी ये a हमको पता है 3 स्क्वायर, 80 हमने फाइंड कर लिया है 1.667 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ठीक है। हमको इससे an मिलेगा। सो an विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1.667 स्क्वायर। So an is 2.49 meter per second square. an is 2.49 meter per second square. So an is equal to v square by rho. 2.49 is equal to v is 19.16 square by rho. So rho will be 19.16 square divided by 2.49. Rho is 147.55, 147.55 meter. Okay, this is the answer. Okay, now we will take another problem.
ठीक है, जब भी आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो आपको बार बार उसको देखना है कि क्या बताया है, क्या पूछा है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम पूछेंगे इजी पूछेंगे। विल टेक अनदर प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है अभी रिसेंटली मार्च 23 में। A motorist is traveling on a curved section highway of radius 762 meter at a speed of 96 kmph. V is equal to 96 kmph. The motorist suddenly applies the brake and causing the automobile to slow down at the constant rate. Knowing that after 8 seconds the speed has been reduced to 72 kmph. V is equal to 72 kmph at t is equal to 8 seconds. Okay, the speed has been determine acceleration of automobile when speed reduced to 72 kmph. ठीक है, एक्सलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमको टोटल एक्सलरेशन फाइंड करना है विच इज़ वेरी इजी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी टी. v कितना है फाइनल v, इट इज़ 72. अभी ये फाइंड करेंगे. 72 का ये आता है 20 मीटर पर सेकंड, ये आएगा 26.67 मीटर पर सेकंड. ओके, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80 t. v इज इक्वल टू 20, u इज इक्वल टू 26.67 प्लस 80 इंटू t इज इक्वल टू 8. सो 80 इज इक्वल टू, विल कैलकुलेट दिस, 20 minus 26.67 divided by 8. It is minus 0.83 meter per second square. Okay, now we'll find an. An is equal to v square by rho. ठीक है, तो हमको ये टाइम पे उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एक्सलरेशन एट द स्पीड ऑफ 72, यानी क्या जब 8 सेकंड पे रहा तब हमको एन फाइंड करना है v स्क्वायर बाई रो. ठीक है, तो वो टाइम पे v कितना है, 20 स्क्वायर बाई रो इज 762. सो इट इज़ 400 डिवाइडेड बाय 762. इट इज़ 0.524 मीटर पर second square. So a is equal to, in under root, an square plus 80 square, so it is 0.524 square plus 0.83 square. Zero 0.9815 meter per second square. So this is the final answer. Okay, then ये प्रॉब्लम पूछा है मई 23 में 6 मार्क्स के लिए. ठीक है, नाउ विल टेक अनदर प्रॉब्लम. A racing car travel around a horizontal circular track of radius 100 meter. Rho is given 100 meter. If the car starts from rest, means what? U is equal to 0 and accelerates with the tangential acceleration of 7 meter per second square. Okay, AT is given 7 meter per second square for some time. Determine the time and velocity when the total acceleration of the racing car reaches to 8 meter per second square. Total acceleration is 8 meter per second square.
टाइम एंड वेलोसिटी हमको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे a इज़ गिवन, a स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम AN फाइंड करेंगे। a इज़ 8 स्क्वायर, AT इज़ 7 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। सो AN इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, it is AN is 3.87, AN is 3.87, right, meter per second square. So AN is equal to V square by rho, AN is equal to V square by rho. So 3.87 is equal to V, V हमको फाइंड करना है, V square by rho is 100 मीटर. So V is equal to 19.67 meter per second. V is 19.67 meter per second. Now we have to find out time. So V is equal to U plus AT T. V is 19.67, U is 0, AT is 7 into T. We'll find T is equal to which is 2.81 second, 2.81 second. So this is the problem. This problem was also asked in exam. Now we'll take one last problem. एक लास्ट प्रॉब्लम लेंगे जो कि May 22 में पूछा हुआ है. एन आउटडोर ट्रैक इज 126 मीटर इन डायमीटर. ओके, 126 मीटर इन डायमीटर. A runner increases her speed at the constant rate from, ये आउटडोर ट्रैक जो दिया हुआ है R इज इक्वल टू 126 मीटर. ओके, ए रनर इंक्रीजेस हर स्पीड एट द कांस्टेंट रेट फ्रॉम 4.2 मीटर पर सेकंड टू 7.2 मीटर पर सेकंड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 28.5 मीटर. ठीक है, S is given 28.5 meter. Okay, U is given 4.2 meter per second and V is equal to 7.2 meter per second. Sorry, 7.2 meter per second. Determine the total acceleration of the runner 2 seconds after she begins to increase her speed. Okay, so total acceleration find करना है at t is equal to 2 second, at t is equal to 2 second पे. ठीक है, so V is equal to U plus AT T. पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. V is 7.2, U is 4.2 प्लस AT फाइंड करना है एट नहीं 2 सेकेंड. 80 कितना आता है? ये गलत हो रहा है. हम यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ATS. V इज इक्वल टू 7.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
80 s. S is given, that is 28.5. So 80 will be 7.2 square, sorry, 7.2 square minus 4.2 square divided by 2 into 28.5, which is 0.6 meter per second square, which is 80. Now for you have to find out an also. An at t is equal to 2 seconds. So for an we have to find out the velocity at t is equal to 2 seconds. So v is equal to u plus 80 t. Okay, u is given, which is 4.2. 80 is given 0. We had calculated. Okay, into t is 2. So v is equal to 5.4 meter per second. So an is equal to v square by rho. V is 5.4 square by rho is 126. So an is equal to just 0.23 meter per second square. So a is equal to, in under root, an square plus 80 square, 0.6 square plus 0.23 square. So a is equal to, calculate, 0. an कैलकुलेट करो कितना होता है. an 5.4 square divided by 126. 1 2 3. ये जो है ये रेडियस नहीं है, ये डायमीटर दिया हुआ है. ठीक है, सो रेडियस इज इक्वल टू 126 बाई 2. इट इज़ 126 बाई 2. इट इज़ 63 मीटर. सो यहाँ पे 63 आएगा. 5.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 63. इट इज़ 0.462. सो यहाँ पे भी 0.462 आएगा. स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, सो इट इज़ 0.757. 0.757 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको. ठीक है, सो जब आप ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है. लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर्स है उसमें से न्यूमेरिकल्स निकालिए. ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए. ठीक है, अभी जो पेपर आएगा उसी 3 क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होके आएंगे. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. आज के लिए इतना ही. कल हम स्टार्ट करेंगे रेडियल कंपोनेंट्स, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.